saving of certain laws. Article 31A, 31B, 31C. Constitution 44th Amendment Act 1978. Clause F of Article 19, Clause 1, that provided a right to property as fundamental rights, and Article 31, which contained the provision of compulsory acquisition of property, were omitted or deleted by the Constitution 44th Amendment Act 1978. The amendment abolished the right to property as a fundamental right. So what it did, it abolished right to property as fundamental right. So which constitutional amendment act abolished right to property as fundamental right? Am I not audible or what? So 44th Amendment Act. Yes, 44th. 44. And incorporated it merely a constitutional right to be regulated by the ordinary law. It became constitutional right, and that to be regulated by a ordinary law. It inserted a new chapter, right to property. What it did, it inserted a new chapter, right to property, in part of the constitution. So in which part, if the question is coming, in which part right to property is there? 12th. And this chapter has only one article, that is 300A. So this is the history of right to property. Now we'll talk about Article 31A. Saving of laws providing for acquisition of estate. Article 13(1) Clause A was inserted by the Constitution First Amendment Act. So this thing you need to remember. It was inserted by Constitution First Amendment Act 1951 into the Constitution with retrospective effect. From the date of commencement of the Constitution, that is, so when did Constitution came into commenced? 26 January 1950. And what is the date of enforcement of the Constitution?
26 November 1949. Yes. It provided that no law providing for acquisition of any state. Again, I'll repeat. First thing, no law. This thing you need to remember. Then for what? Providing acquisition of any state, estate. No law that provides for acquisition of any state or any right that is related to that estate. Therein, extinguishment or modification of such right. So, if right is being extinguished or it is being modified by such law, then it will not be deemed void. Not void. On the ground that it was inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 और 19. बेसिकली आप एक चीज़ समझो, कोई लॉ आया, ठीक है? अब वो लॉ क्या करता है कि वो आपका स्टेट है उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है. स्टेट की मीनिंग समझा दूंगा क्या है, बट अभी आप इतना ही समझो. कोई आपका स्टेट है उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है, या स्टेट से रिलेटेड कोई राइट्स हैं उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है या उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो वो वॉइड नहीं होगा अगर वो आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन भी कर रहा है. समझ में आ गया कि नहीं आया, इतना बताओ आप. सम्राट समझ में आया? Yes, sir. विनीत, संगीता? Yes, sir. ठीक है. अब एक चीज़ समझो, 31A है, एक कई बार अमेंड हुआ है टाइम टू टाइम, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, बट इतना समझो. अब और क्या ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो ये लॉ को सेव करता है, सेविंग दी लॉज. क्या करता है? सेविंग दी लॉज. कौन से लॉ? जो प्रोवाइड करते हैं एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कहो तो मैं बता दूं आपको, ठीक है? सबसे पहला है एक एक्विजिशन ऑफ स्टेट नहीं, एस्टेट. दूसरा है क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट in public interest. For limited period. Third one, amalgamation, मतलब मर्ज करना, merging of two corporation in the public interest. Then extinguishment or modification of any right related to a state, और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, इन सब की राइट्स, ठीक है? इसके बाद और आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
एक है मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट दैट इज accruing by virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for or binning any mineral oil or the premature termination or cancellation of such agreement lease. So अगर कोई लॉ है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, अमलगमेशन ऑफ टू कॉर्पोरेशन, extinguishment or modification of right or extinguishment or modification of right that is accrued by virtue of any agreement, lease or license. तो ये सब void नहीं होगा, वो लॉ विल नॉट बी void. अगर कोई लॉ इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा है void नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. अगर वो 14 और 19 के साथ इनकन्सिस्टेंट है तो डेट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड void. बस इतनी सी कहानी है इसमें आपको समझाने की. अब इसमें थोड़े दो चार टर्म्स है, एस्टेट हो गया, एस्टेट हो गया और भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. सो क्या है, बस इसमें एक कंडीशन है दैट प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय दी लेजिस्ल. अब एक चीज़ आप समझ लो, ये तो हो गई पार्लियामेंट. अब मान लो अगर कोई लॉ है और इसी पर्पज से किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट केस. इन दिस केस द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल shall not apply if any law that is giving effect to all these things that we have discussed just now, giving effect, then, and this law is made by the state legislature, then this article shall not be applicable. However, there is this one exception. If this law that is made by the state legislature and it is reserved for the consideration of President of India and it received the assent of President of India, then in this case the provision will be applicable. अगर कोई लॉ इनको अफेक्ट कर रहा है, जो चीज़ हमने डिस्कस की है और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो फिर आर्टिकल 31 ही एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर सेम लॉ को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जाए और प्रेसिडेंट उसकी एसेंट देता है, तब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे. समझ आया कि नहीं आया आपको, इतना बताओ. दूसरी एक चीज़ और है कि अगर किसी के पास कल्टीवेशन के लिए लैंड है और इस टाइप का ये सब है, तो फिर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा एंड द कंपनसेशन वुड बी ऑन मार्केट रेट. मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के आधार पर कंपनसेशन देना पड़ेगा. अब आपको मैं जो एस्टेट है इसके बारे में बता देता हूँ. ये आर्टिकल 31A क्लॉज 2 में है. तो एस्टेट का मतलब है रिलेटिंग टू लैंड रिसोर्सेज. कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया के लैंड रिसोर्सेज से एस्टेट की मीनिंग निकलती है. इसका पहला हम लोग देख लेते हैं. इसमें कोई, जैसे हम लोग पहले जागीर हुआ करती थी, जागीर, इनाम, और जो डिफरेंट टाइप्स की ग्रांट होती थी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, और कुछ जजमानी राइट होते थे, वो चीज़ें हो गई, ठीक है. दूसरा, लैंड हेल्ड अंडर
रैयतवाड़ी सेटलमेंट, वो एक एस्टेट में आ गया। फिर एनी लैंड हेल्ड और लेट फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर पर्पज ऑफ एंसिलरी, that includes wasteland, forest land, land for pasture, sites of building, other structure occupied by the cultivator of land, agricultural laborers and village artisans। तो ये सब भी एस्टेट की डेफिनेशन में कवर्ड है। अब जो एक नेक्स्ट चीज़ यहाँ राइट है, एक एक्सप्रेशन जो राइट है, तो राइट की बात कर लेते हैं। तो राइट इन रिलेशन टू एन एस्टेट shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure holder, रैयत, अंडर रैयत और अदर इंटरमीडियरी, और एनी राइट और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये सब लैंड से रिलेटेड जितना भी मामला है वो सब इसमें कवर्ड है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 31A का। अच्छा, आप मुझे ये बताओ 31A वॉज एडेड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? विनीता, आप बताओ। फर्स्ट अमेंडमेंट अब। ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट के समय इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? पता नहीं सर। नहीं पता? नहीं। किसी को पता है? सर नेहरू या पटेल में से कोई थी, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, नेहरू होम मिनिस्टर थे? सर पटेल होंगे फिर हम वल्लभ भाई पटेल। ये आप कह सकते हो, मैं मान लूँगा, लेकिन सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और उस टाइम कब आया था ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? नाइनटीन 51। अच्छा, तो बट सर नेहरू बने तो थे ना, मतलब हाँ, जितना नेहरू ही पटेल की डेथ के बाद नेहरू ने ही चार्ज लिया था 50 में, 14 राइट। 14 डेज के लिए। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसकी डेट क्या है? ये 1951 में आया था और 18 जून को इनेक्ट हुआ था। ठीक है। तो इस हिसाब से उस समय ना तो नेहरू थे और ना ही वल्लभ भाई पटेल थे, तो फिर कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। नहीं तो मतलब यूपीएससी आजकल ऐसी कुछ पूछती है। अब जब प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया तो होम मिनिस्टर भी पूछ लेंगे, क्योंकि सर एक वो तो गवर्नर जनरल थे ना उस टाइम पे, या फिर नहीं थे? गवर्नर जनरल तो फिर उसके बाद हट गए थे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इफेक्ट में, तो फिर गवर्नर जनरल क्यों रहेंगे? अच्छा हाँ, वो ठीक तो है। 47 से 50 तक के बीच का पीरियड था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, तो फिर तो प्रेसिडेंट होंगे हमारे यहाँ। गवर्नर जनरल की हमें क्या ज़रूरत है ना? अब तो हम कम्प्लीटली सोवरेन हो गए ना। गवर्नर जनरल तो अंग्रेज़ों का सिस्टम था। तो उस समय सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद कैलाशनाथ काटजू बने, फिर जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। तो एक चीज़ है।
अब क्या डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ? सो 31A का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू फैसिलिटेट agrarian reforms. A ऑब्जेक्टिव था, and hence the protection is not applicable to a law that seeks to modify the right of owner without reference to agrarian reform. अब आप एक चीज़ समझना कि अगर कोई ऐसा लॉ है and that only wants to modify the right of the owner but it has nothing to do with agrarian reform, then protection under this article is not available for those kind of laws. समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ? वॉइस तो क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है. अब बात करते हैं 31B की. 31. Sir, this is tested by judiciary only, no? If it is facilitating. Yes, that's what judiciary said. कि अब अगर आपका अग्रेरियन रिफॉर्म से लेना ही देना नहीं है, कुछ भी कर दो, फिर तो ऐसे नहीं होता ना, फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको. बेसिकली आप अग्रेरियन रिफॉर्म के लिए लेके आ रहे हो, सो यू आर ब्रिंगिंग दिस लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल देन जुडिशरी हैज नो इशू, बिकॉज इन नो वे जुडिश this is what judiciary said, that it cannot violate article 14 and 19 if it is bringing the reform. Now we'll talk about Sir, any case law? केस लॉ. एक था लैंड एक्विजिशन एक्ट था मद्रास का, ठीक है. वो इससे रिलेटेड है. मद्रास वाला एक केस था, वो केस का नेम तो कुछ ये था, कुछ बाजार आलू मुदलियार वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, इस टाइप का केस था, ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हो चाहो तो, अगर आपको चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ केस का नेम आपके लिए. पी बाजार आलू मुदलियार versus special deputy collector, and I can tell you also what had happened in this case. The Land Acquisition Act 1961 was not a law for agrarian reform, therefore it was not protected under article 31 of the constitution. The act was passed not only clear slum but for housing scheme and the creation of modern suburbs, therefore it cannot be regarded as agrarian reform. ठीक है. सम्राट, Yes, sir. ये आया था, इसका था कि भाई एक तो स्लम को क्लियर करो और हाउसिंग स्कीम थी तो उसके लिए लैंड एक्वायर करो. सो आप बेसिकली मॉडर्न सबर्ब क्रिएट कर रहे हो एंड इन नो वे इट्स रिलेटेड टू अग्रेरियन रिफॉर्म. इसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी. अब आगे बात करते हैं 31B की.
31B was added by the Constitution First Amendment Act 1951. So it relates to validation of certain acts and regulation. First thing, what they said without prejudice to the generality of provision contained in Article 31A. It means it will not prejudice Article 31A, the provision of Article 31A. None of the act and regulation is specified in ninth schedule, nor any of the provision of that ninth schedule shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground of such act, regulation, or provision is inconsistent with or takes away or abridges the right conferred by any provision of this part. This part means what? This part means fundamental right part. And notwithstanding any judgment, decree, or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said act or regulation shall subject to power of any competent legislature to repeal or amend it, continue to force. Now the validity of the amended and repealed act, if not saved under Article 31A, can be examined by the courts on merit. एक किया, अब आए ऐसा सब बोल दिया इसमें। देन एक केस आया, इस केस का नेम था बामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये समझ में आया आपको 31B में क्या बोला मैंने? थर्टी वन बी में मैंने वही बोला जो 31B में लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आपको तो समझ में आएगा। In this case, the court held the amendment made to acts which are already placed in ninth schedule are not automatically immunized from legal challenge, and therefore their validity can be challenged even after their inclusion in the ninth schedule. समझ में आया कि नहीं आया? यस ये कह रहा है कि जो Yes, sir. प्रोटेक्शन है 31B की, ये सिर्फ ओरिजिनल एक्ट्स के लिए अवेलेबल है, जो जब आया था नाइन्थ शेड्यूल और उस टाइम पे वहाँ पर एडिट थे उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी अंदर डालते रहो और उसको चैलेंज ना किया जा सके, वो सब चैलेंज हो सकते हैं। अब एक केस हुआ पराग आइस एंड ऑयल मिल्स करके। इस केस में कहा कि द ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन मेड अंडर एक्ट इंक्लूडेड इन द नाइन्थ शेड्यूल आर ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31B एज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एक्ट। तो ये 31B की बात है। अब 31C और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी सी आपको कुछ केसेस बताऊंगा। मिनरवा मिल का केस हो गया, बामन राव फिर से डिस्कस करेंगे, और IR कोलियोक वाला भी डिस्कस कर लेंगे। तो इससे जो है आपके पास एकदम पिक्चर में क्लैरिटी आ जाएगी। 31C क्या बोलता है?
किसी को आइडिया हो तो मुझे बताओ यार। पीपीएसपी को इनेक्ट करने में हेल्प करता है शायद लफ्ज। ठीक है, बात करते हैं इसकी। पहले तो आप ये बताओ 31C कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था? 25th शायद से। गुड। 25th Constitutional Amendment Act that came in 1971. It added 31C and it says saving of laws giving effect to certain directive principles। ठीक है, आर्टिकल 31C इसमें कहा कि जो भी वॉट एवर इज देयर इन आर्टिकल 13 even that exist no law giving effect to the policy of state, no law giving effect to the policy of state towards securing all or any of the principle laid down in part 4 shall be deemed to be void। पार्ट 4 का मतलब कि पूरा डीपीएसपी चैप्टर कवर कर दिया इसने। on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of right conferred by article 14 and 19। ठीक है, एक इसमें एक चीज़ ऐड हुई, एक इसमें एक और हिस्सा ऐड हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट दे दो आप मुझे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ देखना है 31C में। ठीक है, तो इतना ये एक चीज़ इसमें जो था, पहले क्या था आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो इतना प्रोविज़न था ना, इसको मुझे बताना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला all or any of the principle laid down in part 4 A, this one, इसमें क्या प्रॉब्लम थी ये आपको बता देता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये पहले 39B और 39C था, इन्होंने रिप्लेस करके क्या कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया पार्ट 4 लिख दिया। इसके बाद एक चीज़ और इन्होंने क्या की, जो मैं बता रहा था आपको, एक मिनट, हाँ, shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with
or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 and 19. ये जो 7th है, it was substituted by 44th Constitutional Amendment Act. इतना 14 and 19 था. It was substituted by 44th Constitutional Amendment Act for Article 14. हाँ, बस इतना. पहले क्या था? 14, 19 एंड 31 ये था पहले. ठीक है, तो इसकी जगह पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस चीज़ को समझते चलना. और जो ये 42nd वाला है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना. ये 42nd अमेंडमेंट है और ये 44th अमेंडमेंट है. इनकी नई जो ओरिजिनल पोजीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ क्या लिखा था? इसमें लिखा था द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 19. तो पहले 39. तो इस चीज़ को मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो. इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में? जो स्टार्टिंग की पोजीशन थी, बहुत एकदम वेरी बिगनिंग में जब ये आया था, कौन से अमेंडमेंट से आया था? 25th से. जब 25th से आया था तो उस समय ऐसा लिखा था, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी towards securing any of the principle laid down in clause B and clause C of article 29. पहले ये नहीं था. ठीक है, shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or taken away or abridges any of the rights conferred under article 14, 19 and 31. पहले की पोजीशन ए थी. ये पोजीशन 42nd अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में. उसमें इन्होंने क्या रिप्लेस किया? इस 39B और 39C को हटा के कर दिया ऑल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ लेट डाउन इन पार्ट 4. इसको चेंज किया. ठीक है, फिर 44th आया तो 44th में इन्होंने 14, 19 एंड 31 को हटा के, क्योंकि तब तक ये 31 जा चुका था, सो कर दिया 14 एंड 19. तो ये अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ मुझे आप. Yes, sir. ठीक है, अब एक पहला पार्ट है इसका. इसमें एक और पार्ट है जिसको मैं लिखता हूँ, एंड नो लॉ containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that
it does not give effect to such policy. इस चीज़ को गौर से समझना आप। ये जो एक पार्ट पहला है उसको हम लोगों ने देख लिया। दूसरा पार्ट क्या है कि अब आपने कहा कि एक कानून आ गया, ठीक है। आपने कहा कि इन्होंने तो कहा कि भाई डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए हम कानून लेके आ रहे हैं। दूसरे हिस्से में लिख दिया दूसरे हिस्से में क्या लिखा है इन्होंने, दूसरे हिस्से में इन्होंने लिख दिया, अब आपको लगा कि कोई कानून आया है, बट ये कानून तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो पॉलिसीज हैं इनको तो इफेक्ट दे ही नहीं रहा है, तो इसको चैलेंज करना चाहिए। तो उन्होंने ये भी मना कर दिया कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। तो समझ रहे हो कि पूरा जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ही ख़त्म कर दिया। अब केशवानंद भारती केस में इसका जो इसको चैलेंज हुआ पूरा 25th अमेंडमेंट, तो ये वाला जो हिस्सा था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बाकी मैं और आपको बताता हूँ। एक चीज़ और इसमें इन्होंने कह दी, प्रोवाइडेड दैट वेयर, वही स्टेट लेजिस्लेचर वाला था कि स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बनाया तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक इसमें प्रोविजन था, एक प्रोविजो था। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट एज स्टेटेड इन इट्स प्रियम्बल, जो इसकी प्रियम्बल थी उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव बोला कि was to get over the difficulties placed in the way of giving effect to the directive principle of state policies। तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो इसलिए हम इस अमेंडमेंट को लेके आए हैं। And it provided no law which contains a declaration that it is giving effect to such policy would be deemed to be void on the ground it is inconsistent with or takes away, abridges any of the right conferred by Article 14 and 19, and no law containing a declaration that it is giving effect it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that new law does not give effect to such policy। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो जो मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती का केस था, इन दिस केस द मेजॉरिटी स्ट्रक डाउन द डिक्लेरेशन, ये वाली डिक्लेरेशन, that it would not be called in question it will not be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy। So court said that it is the unconstitutional on the ground that it was destructive of the basic feature of the constitution, and that is the judicial review, but held the first part of the clause valid। फर्स्ट पार्ट मीन्स ए वाला पार्ट, इसको बैलेट किया। बैलेट कौन सा, अभी ये चेंजेस नहीं आए थे केशवानंद भारती के टाइम में, आपको पता है केशवानंद भारती 1973 में आया था, तो ये चेंजेस 42nd 1976 में आया, ये आई थिंक 1978 में आया था 44th, है ना।
तब उस टाइम तक ये चेंजेस नहीं थे। उस टाइम तक क्या था, 39B 39C और ये 14 19 एंड 31 ये चीज़ें थी वहाँ पे। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है। सो पहला पार्ट इन्होंने वैलिड माना। इन्होंने कहा कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज वैलिड दैट एनी लॉ enacted by Parliament for giving effect to the directive principle contained in clause B and C of Article 39 could not be declared void on the ground that it violated or abridged any of the right conferred under Article 14, 19 and 31. ठीक है। The effect of declaring the second para as void is that the court will have jurisdiction to examine whether there is direct or reasonable nexus between the laws passed to implement the directive principles contained in Article 31B and 31C. 39. Yes, sorry. 39B and 39C. Yes. The absence of declaration in the Act that it was intended to give effect to Article 39B would not render 31C inapplicable. The question whether an act is intended to secure the objective contained in 39B or not does not depend on the declaration by the legislature but depends on its content. And in order to ascertain this, the court has to examine the legislation as a whole. ये सब कोर्ट ने बोला। द सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज जो शुरू होती है, पहली स्टेज खत्म हो गई यहाँ। पहली स्टेज में कौन कौन ए वाला सेकेंड हिस्सा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। 25 से आया, उसमें दो हिस्से आए, दो हिस्से में से ए वाला हिस्सा आपका कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इतनी चीज़ें बोल बाल के। अब इसमें फिर नया स्टार्ट हो गया 31C में। अब इसमें क्या किया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 31C was amended which further widened the scope of Article 31C so as to cover all directive principle. It substituted for the words directives contained in 39A, 39B and 39C, and what they added, जो हम लोगों ने अभी देख लिया, all or any of the principle laid down in part 4. The amendment therefore gave complete constitutional protection to laws passed not only to implement
the principle specified in Article 39B and 39C, but also the principle laid down in Part 4 of the Constitution. Whereas 25th gave primacy to directive contained in 39B and 39C only over the fundamental rights guaranteed under Article 14, 19, and 31. Remember, at that point of time, 31 used to exist. The 42nd Amendment gave precedence. What it did, it gave precedence to all directive principles over the fundamental rights guaranteed by आर्टिकल 14, 19 एंड 31. आप समझ रहे हो क्या खेल कर दिया? पहले कहा 39B 39C, फिर अचानक से कह दिया पूरा DPSP कोई कर दो कवर. तो अब सुप्रीम कौन हो गया, फंडामेंटल राइट की DPSP? बताओ आप मुझे, किसको सुप्रीम बना दिया? DPSP. एटलीस्ट यहाँ तो 49 और आर्टिकल 14 और 19 की तो वैल्यू ही खत्म कर दी, इनके ऊपर तो DPSP है. अब क्या था इसका? सेक्शन 4 था जो ये लेके आया था. केस आया मिनर्वा मिल केस. कौन सा केस आया? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 4-1 of Supreme Court's majority, 4 in favor, 1 against, struck down Article 31C as amended by Section 4 of 42nd Amendment as unconstitutional on the ground that it was destructive of the basic feature. The court said that Section 4 of 42nd Amendment was beyond the amending power of Parliament. क्या कहा? It was beyond the amending power. इसको अच्छे से याद कर लेना, और इस केस को आप कोट भी कर सकते हो अगर अमेंडमेंट में कुछ आ जाए. अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट and was void since it damaged the basic structure of the Constitution, totally excluding from the challenges to any laws giving effect to the directive principle of state policy, even if they were inconsistent with rights guaranteed Article 14 and 19. The court said the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between between Part 3 and 4, and to give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. ये सब लाइनें याद कर लेना और इनको लिख देना अगर कुछ आ जाए तो. To give absolute, हाँ क्या मैं बता रहा था, हाँ, द हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन, क्या बोला था मैंने आपको? अच्छा हाँ, द हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एन एसेंशियल feature of the basic structure. The directive principles prescribe the goal to be attained. Directive principle क्या करता है? एक गोल बताता है कि ये गोल है, that has to be attained, and the fundamental rights lay down the means by which the goal is to be achieved. The goal set out in Part 4 have to be achieved without abrogating the means. But that means without abrogating the fundamental rights provided by Part 3. And therefore, there is no conflict between
the directive principle and fundamental rights. These are meant to supplement one another. And 31C, as originally introduced by the 25th Amendment, is constitutionally valid. तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्या है जो वो आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था, 31A, B, C, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और 9th शेड्यूल का भी मैं आपको बता देता हूँ कि 9th शेड्यूल में क्या है। कि 9th शेड्यूल का एक केस था, IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 9 जज बेंच थी। कोर्ट ने कहा एनी लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24th April 1973 when Keswanand Bharati judgment was delivered would be open to a challenge। सिंपल सी बात समझो, अगर 9th शेड्यूल में कोई भी चीज़ आप 24 अप्रैल 1973 के बाद प्लेस करते हो, इट वुड बी ओपन टू चैलेंज। कोर्ट में आप इसको रख सकते हो। Even though an act is put in 9th schedule by constitutional amendment, its provision would be open to challenge on the ground as they destroy basic feature of the constitution। So आप एक चीज़ समझ लो कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ इसके बाद रखा गया है, दे आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। दिस इज द पोजीशन इन IR कोलियो केस एंड दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये 31A, B, C हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि